Hallelujah, 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 hallelujah. مسیح خدا میں آپ سب کی سلامتی ہو. مسیح خدا میں آپ سب کی سلامتی ہو. جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ آج بدھ ہے اور ہر بدھ 7:30 بجے چرچ میں شفائی عبادت ہوتی ہے. عبادت اور کھوج کا ہم خدا کی شکر گزاری کریں گے آج کی شام کے لیے, آج کے وقت کے لیے کہ جو اس نے ہماری زندگی میں مہیا کیا اور ہمیں اس لائق بنایا تاکہ ہم اس کے حضور میں اکٹھا ہو کر اس کے نام کی مدد افزائی کر سکیں, اس کے نام کو پکار سکیں, اس کے نام کو دھن بات کہہ سکیں اور اس کی شکر گزاری کر سکیں. کیونکہ وہ شکر گزاری کے لائق خداوند, وہ مہربان خداوند جو قہر میں تھی اور شفقت میں غنی, وہ اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہے, وہ اپنے لوگوں کی نگہبانی کرتا ہے, اس کا ہاتھ ہمیشہ اس کے لوگوں پر بڑا رہتا ہے. ہم اس کی شکر گزاری کریں گے کیونکہ وہ مہربان خداوند ہے, اس کا ہاتھ اس کے لوگوں پہ بڑا رہتا ہے. ہم اس کی شکر گزاری کریں گے کہ وہ مہربان خداوند ہے. ہم اس کی شکر گزاری کریں گے کہ وہ اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہے اور اپنے لوگوں کو اپنے نام کی خاطر کثرت سے استعمال کرتا ہے. ہم اس کی شکر گزاری کریں گے. آج کی شام کے لیے, اپنی سانسوں کے لیے, پاک ہیکل کے لیے ہم اس کی شکر گزاری کریں گے کیونکہ وہ مہربان خداوند ہے جو قہر میں تھی اور شفقت میں غنی ہے. اس کا ہاتھ ہمیشہ اس کے لوگوں پہ بڑا رہتا ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت ہم پر رہتی ہے. ہم اس کی شکر گزاری کریں گے جس نے ہم سب کو یہ موقع دیا تاکہ ہم اس کے حضور میں اکٹھا ہو, اس کے نام کی مدد افزائی کر سکیں, اس کے نام کو پکار سکیں, اس کے نام کو دھن بات کہہ سکیں, اس کی شکر گزاری کر سکیں. جب ہم آمد و رفت میں ہوتے ہیں تو اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہے, وہ اپنے لوگوں کی نگہبانی کرتا ہے, وہ اپنے لوگوں کی نیڈس کو پورا کرتا ہے. ہم آج کی ساری باتوں کو خدا کے ہینڈ اوور کریں گے. میری درخواست ہے جتنی ٹیم موجود ہے کھڑے ہوں گے اور اونچی آواز میں دعا کرنا شروع کریں گے, اس کی شکر گزاری کرنا شروع کریں گے. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. اس رات سے تیری شکر گزاری کرتی ہوں آج کی شام کے لیے, آج کے وقت کے لیے, اس رات سے جو تم نے ہماری زندگی میں مہیا کیا. اس رات سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ تم مہربان خداوند ہے, تو شکر گزاری کے لائق خداوند ہے, تو مہربان خداوند ہے. تیرا ہاتھ میں شکر لوگ بڑا رہے. اس رات سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کی ساری باتیں تیرے میں دور کرتے ہیں. اس رات سے اپنی بندی کی طاقت پر چل
اور کثرت سے استعمال کرنا، اس ناز سے اپنے نام کی خاطر کثرت سے استعمال کرنا، اس ناز سے ہماری زندگی میں تو بڑھتا چلا جائے اور ہم بڑھتے چلے جائیں۔ اس ناز سے اپنے لوگ ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اور اس ناز سے اپنے لوگ اور تاکہ مصیبت پریشانی اور تاکہ بیماری لاچاری اور تاکہ آفت سے اور تاکہ مصیبت سے بچا کر محفوظ رکھتا ہے، اپنی گزاری کرتے ہیں۔ آج کی صحیح بات اس ناز کے لیے ڈاؤ کریں تو ہم سب کی طاقت بن جائے، ہم سب کا زور بن جائے اس ناز سے، اور اپنے لوگ اس سے استعمال کریں۔ اس ناز سے اپنے خادم کا منہ بن جائے، اپنے خادم کی طاقت بن جائے، اور اپنے خادم کو کثرت سے استعمال کریں۔ تیرا خادم تجھ میں زور پکڑتا جائے، اور ہر تاکہ مصیبت پریشانی ہر تاکہ آفت اس ناز تیرے خادم تمام امن کمیٹی سے اور خادم کے گھرانہ سے دور رہے۔ اس ناز سے اپنے لوگوں کو کثرت سے استعمال کریں۔ جتنے لوگ آج کرتے ہیں گزاری کرتے ہیں، جتنے لوگ آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس ناز سے ایک ایک کو بڑی حفاظت سے اس ناز سے یہاں پہ لے کے آنا، تاکہ لوگ یہاں پہ پہنچ کر تیری گزاری کر سکیں اور تیری برکات کو حاصل کر کے جب اپنے گھروں میں لوٹیں تو تیری گزاری کر سکیں، تیرے نام کو پکار سکیں۔ اس ناز سے ہم سب کو یہ توفیق دینا تاکہ ہم لائق طور پر تیرے نام کو لے سکیں۔ اس ناز سے تو میری طاقت بن جانا، تمام سزد ہوگی، تمام کوائر، تمام یوتھ، تمام ٹیم، تمام کلیسیا کی طاقت بن جانا، اپنے خادم کی طاقت بن جانا، کثرت سے استعمال کرنا۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے جو کچھ سے مانگا ہم نے پایا، دینا سے مانگا دے پاتے ہیں۔ سلامتی کا خواہ خدا کی زندگی میں سے آپ سب کی سلامتی ہو، آپ کی بھی سلامتی ہو۔ ہم خداوند کے خوبصورت زندہ پاک نام میں سے دیکھیں گے ثبوت 89 اور اس کی پہلی آیت سے۔ میں ہمیشہ خداوند کی شفقت کے گیت گاؤں گا، میں پشت در پشت اپنے منہ سے تیری وفاداری کا اعلان کروں گا، کیونکہ میں نے کہا کہ شفقت ابد تک رہے گی، تو اپنی وفاداری کو آسمان میں قائم رکھے گا۔ میں نے اپنے برگزیدہ کے ساتھ عہد باندھا ہے، میں نے اپنے بندہ داؤد سے قسم کھائی ہے، میں تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا اور تیرے تخت کو پشت در پشت بنائے رکھوں گا۔ اے خداوند، آسمان تیرے عجائب کی تعریف کرے گا، مقدسوں کے مجمع میں تیری وفاداری کی تعریف ہوگی، کیونکہ افلاک پر خداوند کا نظیر کون ہے؟ فرشتگان میں کون خداوند کی مانند ہے؟ ایسا معبود جو مقدسوں کی محفل میں نہایت تعظیم کے لائق ہے اور اپنے سب ارد گرد والوں سے زیادہ محیط ہے۔ اے خداوند لشکروں کے خدا، اے یا تجھ سا زبردست کون ہے؟ تیری وفاداری تیرے چوگرد ہے، سمندر کے جوش و خروش پر تو حکمرانی کرتا ہے، تو اس کی اٹھتی لہروں کو تھما دیتا ہے، تو نے رہب کو مقتول کی مانند ٹکڑے ٹکڑے کیا، تو اپنے قوی بازو سے اپنے دشمنوں کو پرگندہ کر دیا۔ پاک کلام کا پڑھا سنا قبول کیا جانا آج ہم سب کے لیے بڑی برکت کا سبب ہے۔ آمین۔ خدا کا شکر ہو، ہم دے خداوندی میں ہم کہیں گے، تن میں قوت نہیں، من بھی میرا سا ہے، اے خداوند خدا آپ مجھ سے کام کا۔ ہاللویہ۔ تن میں قوت نہیں، من بھی میرا سا ہے، اے خداوند خدا تن میں قوت نہیں، من بھی میرا سا ہے، خدا مجھے تھام دے۔
आगे बढ़ेंगे और ज़बूर नंबर 67 रब साडा साबित ते अपना रहम हो ज़बूर 67 रब साडा साबित अपना रहम बखावे रब साडा अपना रहम बखावे बरकत देवे चेहरा अपना बरकत देवे चेहरा अपना साडे चमकावे अपना Stop
सारिया कौमा आपसे अंदर, सारिया कौमा आपसे अंदर, खुशी मनावन तेरी, खुशियाँ दे जैसे लहराते नगर, फुर्सत गावन तेरी, फुर्सत गावन तेरी। रब साडा साडे उत्ते आवे जाने रब साडा साडे उत्ते आवे जाने होवेगी हुन दैगी उत्ते, होवेगी हुन दैगी उत्ते, पैदावार बथेरी सानू देवे रब साडा, बरकत आप गजेरी, बरकत आप गजेरी। रब साडा साडे उत्ते अपना बरकत देवे गाय रब साडा, बरकत देवे गाय रब साडा, सहसी देती नाले ब्राह्मण के सब लोग खुदा को, मंदिर के दर सारे, मंदिर के दर सारे। रब साडा साडे उत्ते अपना अपना हम सब अपने सर उठाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। सादिक सादिक हालेलुया। कदूस कदूस जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने सारा दिन निगहबानी और हिफाजत की और ये शाम दी कि तेरे कदमों में झुक जाए, तेरे नाम को धन्यवाद करें, तेरे नाम की इज्जत और जलाल दे मेरे खुदावंदा। मैं खुदावंदा इस मीटिंग को तेरे हाथों में देती हूँ, शुरू से लेकर आखिर तक तो हमारा हादी और मददगार रहना मेरे खुदावंदा। जितने गीतों ज़बूर गाए जाएं तेरे हजूर में बखूर की अमानत पहुँचे मेरे खुदावंदा। मैं खुदावंदा इस बाकी हिस्से को भी तेरे हाथों में देते मेरे खुदावंदा, उसमें भी तू हमारी बड़ी निगहबानी और हिफाजत करना मेरे खुदावंदा। मैं खुदावंदा तेरा शुक्र करते हैं कि जितने लोग आ चुके हैं इन सब के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, जितने आने का इरादा रखते हैं मेरे खुदावंदा उनके रस्तों को हमवार बनाना कि वो यहाँ पर आए और आकर तेरे नाम की सताइश करें मेरे खुदावंदा। मैं खुदावंदा तेरा शुक्र करते हैं कि तूने कहा गाते बजाते मेरे हजूर हाजिर हो। बेशक खुदावंदा हम गाते बजाते तेरे हजूर हाजिर हुए हैं, जैसे तेरे पाक कलाम में लिखा है जहाँ साजो आवाज़ मिल जाते हैं वहाँ मेरा अबर छा जाता है। बेशक खुदावंदा यहाँ पे साजो आवाज़ मिले, तेरा अबर छाए, तेरा पाक यहाँ पे कसरत से काम करने वाला बने में पूरी क्वाइट के गले पर तेरा मस्सा मांग लेती हूँ, तेरे बजाने वाले हाथों पे तेरा जोर मांग लेती हूँ मेरे खुदावंदा। खुदावंदा तेरे खुदावंदा गाने बजाने के वसीला से मेरे बहुत से मौज़ात ज़हूर में आए मेरे खुदावंदा। खुदावंदा इसी तरह अपने खादम को अपने पाक कलाम के लिए अभी से तैयार करना शुरू कर दे मेरे खुदावंदा। खुदावंदा उसके सर के बालों से लेके पाँव के तलवे तक छूना मेरे खुदावंदा। खुदावंदा जब वो तेरे मज़बा पर खड़ा होता है मेरे खुदावंदा, तेरा पाक कलाम खुदावंदा हमारे बंद बंद गुदे गुदे को चीर डाले मेरे खुदावंदा। तेरा पाक कलाम हमारी जिंदगियों में से बेतासीर ना लौटे मेरे खुदावंदा। तेरा पाक कलाम हमारी जिंदगियों में 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 का 100 गुना फल लाए और तेरे ही नाम की इज्जत और जलाल दे मेरे खुदावंदा। खुदावंदा तो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हम किन चीज़ों के मोहताज हैं, मगर फिर भी तो कहता है मांग के मैं तेरा मुँह बरकत से भर दूंगा। बेशक खुदावंदा हम तुझसे मांगते हैं, तेरा आगे इल्तिजा करते हैं मेरे खुदावंदा। खुदावंदा हमारा झुकना तुझे पसंद आ जाए मेरे खुदावंदा। खुदावंदा
इस वक्त मेरी इंतजा को सुनना और सुन के कबूल करना। रब जो चाहे नाम से मांग लेती हूँ और पा लेती हूँ। Zabur number 55, तीसरा हिस्सा दूसरा वचन, उनते में यहोवा के दिन करो। उनते में यहोवा के दिन मांगा दुहाई, उनते में यहोवा के दिन मांगा दुहाई, मैनू अपने दिन करके बख्शेगा दुहाई, मैनू अपने दिन करके बख्शेगा दुहाई। मानो मेरा तूने भैया ना गुजारा, मानो मेरा तूने भैया ना गुजारा, तूने गाल उड़ोना मेरा साले Passage में आगे बढ़ेंगे Zabur number 148 करो रब दी खबर करो रब दी मुने बनियाई करो रब दी मुने बनियाई सब आसमाना दी उचियाई सब आसमाना दी उचियाई तारे Thank you.
यीशु नासरी दे गए थे आन बनाए दे गए थे झूमर पान बनाए यीशु नासरी दे गए थे आन बनाए दे गए थे झूमर पान बनाए करेंगे और दुआ करेंगे। साथ शामिल था। हम कुरान हम आपके शुक्रगुजार हैं कुरान जिस वक्त इस पर इस मौका के लिए कुरान दे कुरान तो तूने बख्शा तेरे हौसले में चुके हैं तेरे नाम को इज्जत चला दे कुरान बेशक तू सच दे तमजीद इज्जत और शुक्रगुजारी के लायक कुरान है ना आसमान पर ना ज़मीन के तले कोई ऐसा नाम नहीं बख्शा गया कुरान के कुरान चली बाप तेरा ही नाम सबसे आला है तेरा ही नाम सबसे अफजल है कुरान के कुरान चल बाप जितने लोग तेरे हजूर में आए हैं कुरान के कुरान एक एक को तेरे हाथ देते हैं तेरे पाक मसा के नीचे छुपा देते हैं कुरान के कुरान
ए खुदावंद के खुदा तुझको ढेरों बरकतों से नवाजना, क्योंकि जो तुझसे मोहब्बत रखता है खुदावंद के खुदा और तुझसे डरता हुआ अपनी ज़िंदगी को बसर करता है, तेरे हसूल में रहता है। ए खुदावंद के खुदा तो उसकी हर नीड को पूरा करता है खुदावंद के खुदा। ए जल बाप एक एक चांद को तू जानता है, नाम बनाम सबसे वाकिफ है खुदावंद। इनकी ज़रूरतों को पूरा करना ए खुदावंद के खुदा, इनकी तमाम बीमारियां, इनकी तमाम लाचारियां और खुदावंद के खुदा हर तरह की ज़रूरतों को पूरा कर देना खुदावंद के खुदा। ये बात का पूरा कंट्रोल खुदावंद हम तेरे हाथ लेते हैं। शुरू से अब तक तुम्हारे साथ अपनी निगरानी हिफाजत की, जो कुछ भी गीत गाए गए, जो सबूर गाए गए खुदावंद, उसमें तुम्हारे साथ रहा। बाकी अब हिस्से को भी हम तेरे हाथ लेते खुदावंद के खुदा। ए जल बाप हम अपनी मर्जी से नहीं बल्कि तेरे जलाल से भरकर तेरी प्रशिश करें और तुझे पसंद आए खुदावंद। अपनी साधना के साथ होना ए जल बाप जो तेरे लोगों को लीड करती है, तो तेरा पाक उसको लीड करे, लफ्ज़ की तरतीब दे और खुदावंद के खुदा जिस तरह तू चाहता है वो तेरे लोगों को उस तरह रहनुमाई दे खुदावंद के खुदा। तेरे खादम को भी तेरे हाथ लेते हैं खुदावंद के खुदा। खुदावंद अपने खादम का जोर और कुव्वत बन जाना खुदावंद के खुदा। जल बाप अपने खादम की हर जरूरत को अपने इलाही गैबी खजाना से पूरा करना और जल बाप तो इसी तरह से अपने पागुन का दुगना देकर तो अपने खादम को इस्तेमाल करना खुदावंद। उम्र की दराजी, सेहत और कुलिया अदा करना खुदावंद के खुदा। जल बाप जब वो दूर दराज जाकर तेरे लोगों के लिए आवाज़ उठाता है तो तेरा पाक उसकी बड़ी रहनुमाई करे और खुदावंद के खुदा तो उसको हर आफत से, हर परेशानी से, हर वबा से, हर तरह की दुख तकलीफ से बचा के अपने पनाह में रखना। और खुदावंद के खुदा अब जब तेरा खादम तेरे लोगों के दरमियान अपनी बातों को जो तेरी तरफ से है खुदावंद के खुदा शेयर करे, तो खुदावंद के खुदा तो उसके साथ होना और बड़ी निगरानी हिफाजत करना और खुदावंद वो सच्चाइयाँ जो पाकलाम में से तू चाहता है कि तेरे लोग जान जाएं, तो अपने खादम के वसीला से खुदावंद के खुदा तू उसको आसमान खोल कर नायत करना खुदावंद के खुदा। हमारा तेरे हुजूर में आना ए खुदावंद तुझे पसंद आए, हमारी दुआ को सुन और कबूल कर मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। बराए मेहरबानी थोड़े थोड़े आगे आगे हो जाए, क्योंकि मुझे ज़्यादा बच्चे जो है ना वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और मेरे ख्याल में टीम जिसको भी कह दिया ना ऊपर जाने को सीढ़ियों में, वो महल नहीं चाहता। सीढ़ियों में जिसको भी जाने को कह दिया महल वो नहीं चाह रहे। और अगर आप अच्छा समझें तो अपने बच्चों को सीढ़ियों में भेज दें। और जो कुछ भी बच्चे खा रहे हैं चीज़ें, जो छोटे बच्चे हैं, बराए मेहरबानी माएँ साथ अपने एक जो है वो शॉपिंग बैग रखें ताकि उसके अंदर आप रैपर्स डालें और जो चर्च में जो है वो गंदगी ना फैले। और जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा। कैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा।
मेरे काम से न गए मुड़ना, मेरे कलाम से न जाए मुड़ना, मेरे कलाम से न जाए मुड़ना। हो जाएंगे वो लोग ये सारे, हो जाएंगे वो लोग ये सारे, मैं तुम्हारे को छोड़ूंगा, तेरे बिना रहेंगे वही नगमे, चेंगे वही नगमे, यह सो के जानो पर चेंगे वही नगमे, यह सो के जानो पर तकलीफों का क्या कहना, तकलीफों का क्या कहना, मरना भी दवाया है, अंजीर को फैलाना ये काम हमारा है, अंजीर को फैलाना ये काम हमारा है, मुझे कमाने के ये काम प्यारा है, मुझे कमाने के ये काम प्यारा है, संतों पे सजीवे हो, संतों पे सजीवे हो, अंधेरों हाथों में, संतों पे सजीवे हो, अंधेरों हाथों में, दुनिया को बता देंगे, दुनिया को बता देंगे, कोई बता
एक जमाने में ये नाम प्यारा है। Hallelujah. Hallelujah. Read the verse 409. Hallelujah. Tari de mara Yesu de mahara Tari de mara Yesu de mahara तोरी दया से सबर गए हैं तोरी दया से सबर गए हैं मारे खारे आज तोरी दया मारा यीशु
हम सब हमें शुरू करते हैं अपने आंखों को बंद करें और दुआ करें। बहन क्लोरिया साथ में दो जल्दी से खड़ी हो जाए। आज मैंने शुरू में एक अनाउंसमेंट की थी क्वाइट के लिए कि आज मैंने प्रैक्टिस जो है क्वाइट की शुरू करवानी है और वो क्वाइट के मेंबरान जो इबादत में और क्वाइट प्रैक्टिस में ये दोनों इबादतों में भी बुध की इबादत में और संडे की इबादतों में और जो प्रैक्टिस जब हुआ करेगी उनमें भी मजबूत होंगे जो अपने आप से वादा करते हैं मेरे साथ में वो प्रैक्टिस के लिए जो है वो बैठ जाएँ और जो लोग छुट्टियाँ करना चाहते हैं वो बेशक जो है वो आप जो है सिर्फ जब भी आप कहीं आते हैं आप क्वायर में खड़े हो सकते हैं और गीत भी गा सकते हैं। हाँ तेरे बाप सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा तेरे बाप सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा मेरे बाप
जिसकी कहानी पड़ी है आज भी देखो चेहरे बदल तो चेहरे बदल हालेलुया हम सब अपने आप खुदा के जिंदा कलाम को सुनने के लिए तैयार करेंगे। हालेलुया हर एक जुबान कुछ हम अपना मुंह खोलेंगे तो अपनी बरकतों को रिसीव करेंगे। वो कहता है कि तो अपना मुंह खोल तो मैं तुझे बरकतों से तेरे मुंह को बरकतों से भरूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो मोहब्बत है और हमें मोहब्बत सिखाता है।
जब हम उसके घर में आते हैं, अगर हम मसीही कहलाते हैं तो हमारे दिलों में एक दूसरे के प्यार होना चाहिए। हमें एक दूसरे के ऐब नहीं ढूंढना, बल्कि हमें मोहब्बत करना है, क्योंकि वो मोहब्बत का खुदा है, वो हमें माफ करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा शिक्षा से हो। हालेलुया। खुदा का दूस यीशु राजा, आपके जाने के लिए रुके गहरे मसा के लिए आपने अपनी आत्मा को कसरत से इस्तेमाल किया। इस बात के लिए आपकी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। आपका तख्त यहाँ पर लग चुका है। यीशु राजा, अगर आप हमारे लिए सलीब पर अपनी जान ना देते तो हमारा कोई भी वाली वाला और कोई भी ठिकाना नहीं था। ऐ पाक खुदावंद यीशु राजा, आप कहते कि आप हमसे भूल गए। ऐ पाक खुदावंद यीशु राजा, आज आपके बेटे को, आपके आदम को, आपके ममसूम को, ऐ पाक खुदावंद सर के बालों से लेकर आपके तलवों तक आपके कीमती हुक्म करते हैं। ऐ पाक खुदावंद, जब आपका बेटा बोले तो आज बोलने के वक्त से, आज कलाम की कुदरत से जुए भंगन टूट जाए। आज कलाम दिलों पर चोट करे। आपने अपने सब नामों से ज्यादा अपने कलाम को अस्वत की है। आज कलाम की कुदरत से एक एक की जरूरत यीशु के नाम से पूरी होती चली जाए। आज कलाम की कुदरत से जिंदगियों में से हत्या का दोगलापन, हत्या की नफरत, हत्या की एकजुई यीशु के नाम से जाती रहे। और खुदावंद, आज कलाम शिफा का काम करे। आज कलाम बहाली का काम करे। आज कलाम की कुदरत से रुकी हुई जिंदगियां यीशु के नाम से चले और चलती जिंदगियां यीशु के नाम से दौड़ना शुरू करे। सब पाक खुदावंद, जिस तरह तेरा बंदा पौलुस कहता है, मैं उस निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ। ऐ पाक खुदावंद, आज सब दौड़ना शुरू करे तेरे यीशु नाम की तरफ, तेरे कलाम की तरफ। आज महज जिंदगियां कान महज सुनने वाले नहीं, बल्कि पाक खुदावंद, आज जब कानों के जरिए से कलाम दिलों में उतरे तो पाक खुदावंद, आज जिंदगी आज पाक रूह के वसीला से अमल करना शुरू करे, बदले, तब्दील हो जाए और पाक खुदावंद आज 100 का 100 गुना फल लाए, जिंदगी पाए और कसरत पाए। मांग कर पाते हैं प्यारे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए खड़े खड़े पास्टर अवैस का इस्तेमाल करेंगे, वो आज की दाम का कलाम हालेलुया। सभी तशरीफ रखिए। खुदाम यीशु की हसीन जलाली बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो, आप सबकी सलामती हो। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले अपने जिंदा खुदा का शुक्र अदा करता, तो नहायत रहम, तो नहायत हिकमत, तो नहायत कुदरत और जलाल से बड़ा हुआ खुदा है, जिसने गुज़िरता वक़्त में हमारी हिफाज़त निगहबानी की और आज ये शाम हमारी ज़िंदगी में अता की, ताकि हम उसके हजूर में जमा हों और उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी में ले सकें। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, तरबियत बख्शने के लिए ख़ास है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने। तो यकीनन आज हम अपनी तरबियत को, अपनी नसीहत को रहनुमाई हजूर में खुदा के कलाम में से लेंगे। खुदा का कलाम हमें तरबियत अता करता। तो खुदा के जिंदा पाक कलाम में से दूसरा ग्रंथियों उसका 12 बाब और उसकी 7वीं आयत को देखेंगे तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और मकाशफों की ज़्यादती के बाइस मेरे फूल जाने के अंदेशा से मेरे जिस्म में कांटा चुभोया गया, यानी शैतान का कासर, ताकि मेरे मुक्के मारे और मैं फूल ना जाऊं। इसके बारे में मैंने 3 बार खुदावन से इल्तमास किया कि ये मुझसे दूर हो जाए,
मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। खुदा के पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। तो आज हम खुदा के जिंदा पाक कलाम में से आज सीखेंगे। तो आज का हमारा मजमून है, आज का जो हमारा टॉपिक है कि खुदा कमज़ोरी में अपनी कुदरत को जारी करता है। हालेलुया। कि खुदा हमारी कमज़ोरियों में अपनी कुदरत को जारी करता है। याद रखिए, कलाम मुक़द्दस की जब हम हिस्ट्री को देखते हैं, कलाम मुक़द्दस का मुतालिया करते हैं, तो कलाम मुक़द्दस में लिखा वो कमज़ोरों को चुनता और ज़ोरावर बना देता है। और यहाँ पर खुदा का बंदा मुक़द्दस पौलुस कहता कि जब मैं कमज़ोर था मैंने खुदावन से इल्तमास की। वो कहता मैंने 3 बार खुदावन से इल्तिजा किया कि मुझ पर रहम किया जाए, मुझे जोर दिया जाए, मुझ पर कुदरत को जारी किया जाए, लेकिन खुदा ने कहा कि मेरा फजल कमज़ोरी में तेरे लिए काफ़ी है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर खुदा का बंदा कमज़ोरी की हालत में है। इसकी वजह क्या है कि जब हम देखते हैं कि आज बुध का दिन है, शिफाया इबादत है और हम सब खुदा के हजूर ब्लेसिंग को लेने आए हैं। क्या लेने आए हैं? ब्लेसिंग को, खुदा के हजूर से कुव्वत को रिसीव करने हैं, खुदा के हजूर से सरफराजी को, तवानाई को लेने आए हैं। तो यकीनन जब रास्तबाज खुदा के हजूर में छुपता है तो कलाम मुक़द्दस में ये भी लिखा है कि खुदा अपने बंदों को तक़वियत अता करता है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि मुक़द्दस पौलुस कमज़ोरी की हालत में, इसकी वजह क्या है? तो जब हम कलाम मुक़द्दस का मुतालिया करते हैं तो रसूलों के ईमाल 9 बाब को देखें तो वहाँ पर खूबसूरती से लिखा हुआ है, और सौल जो अभी तक खुदावंद के शकीर्दों को धमकाने और कत्ल करने की धुन में था, सरदार कहन के पास गया और उससे दमिश्क के इबादत खानों के लिए इस मज़मून के खत मांगी कि मैं चाहूँ जो लोग खुदा की इबादत करते खा उनमें मर्द हों खा औरतें हों, उनको यरूशलेम में लाकर बांध दूँ। वो इस मज़मून पर बात करता है। और जब हम देखते हैं कि वो दमिश्क की राह पर निकला कि जो लोग खुदा की तासीम करते हैं, तो यीशु का नाम लेते हैं, उनको वो ले और उनको दुख दे, उनको असियत दे। लेकिन कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो जा रहा था, जब वो सफ़र करते दमिश्क के नज़दीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके गिर्द आ चमका और ज़मीन पर गिर पड़ा और ये आवाज़ सुनी कि ऐ सौल तो मुझे क्यों सताता है। यहाँ पर सीखने वाली बात है कि हम अपनी कमज़ोरियों में खुदा को भूल जाते हैं। जब हम कमज़ोर होते हैं तो हम समझते हैं कि हमारा कोई हमदर्द नहीं है, हमें कोई शिफा नहीं दे सकता, हमें कमज़ोरी से नहीं निकाल सकता। याद रखिए कि जब हम खुदा के लोग हैं और हम जब खुदा के लोग होते हुए कमज़ोरी में होते हैं, अगर कोई हमें दुख देता है तो वो हमें नहीं बल्कि मेरे और आपके खुदा को दुख देता है, मेरे और आपके खुदा को सताता है। और यहाँ पर खुदा मुक़द्दस सौल को कहता कि ऐ सौल तू मुझे क्यों सताता है? तो उसने कहा तू कौन है? तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि मैं यीशु हूँ जिसको तू सताता है। और जब वो गिर पड़ा, जब नूर उस पर चमका तो वो गिरा, जब उठा तो वो देख नहीं रहा था, उसकी आंखें ना खुली। और लिखा कि वो एक जगह पर पहुंचा दिया गया सिदा के इलाका में, घर में। तो जब हननिया से खुदा ने कलाम किया कि फलां जगह पर जा, और वहाँ पर सौल दुआ कर रहा है। उसने कहा कि खुदा तू नहीं जानता, मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि इसने कैसी कैसी बुराइयां की, तेरे लोगों को तंग किया है, परेशान किया है, तेरे मुकद्दसों के साथ कैसी बुराइयां की हैं। और यहाँ इसको सरदार कहनों की तरफ से इख्तियार मिला है कि जो लोग तेरे नाम लेते हैं उन सब को बांध ले। कि मुकद्दस हननिया खुदा को कहता, लेकिन मैं और आप जानते हैं मेरा और आपका खुदा कादिर है, वो हर एक के दिल और गुर्दों को छांचने वाला खुदा है। दिल सब चीज़ों से रहीले बास और लालाच है, इसे कौन दरियाफ्त कर सकता है, लेकिन रब्बुल फाज जानता है। और यहाँ पर खुदा फरमाता, मगर खुदावन ने उससे कहा कि तू जा, क्योंकि ये कौमों
बादशाह और बनी इस्राएल पर मेरा नाम ज़ाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है और मैं उसे जिता दूंगा कि उसे मेरे नाम की खातिर किस कदर दुख उठाने पड़ेगी। अब यहाँ पर खुदा ने जाहिर कर दिया है कि साउल जब लोगों को सताता था और जब दमिश्क की राह पर उसका चुनाव हुआ और जब हननिया को उसके पास भेजने का इरादा किया गया, हननिया कहता कि वो मुकद्दस लोगों को सताता है, लेकिन खुदा ने कहा कि ये बादशाह बनी इस्राएल पर बहुत सी कौमों पर मेरे नाम को जाहिर करेगा और ये मेरा चुना हुआ वसीला है कि खुदा जब चुनता है तो खुदा कद को नहीं देखता। हमने संडे को भी सीखा था कि खुदा ज़ाहिरी तौर पर नहीं देखता बल्कि खुदा हमारे दिल को चेक करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमने मरकज़ी आयत ली थी कि खुदा हमारी कमज़ोरी में अपनी कुदरत को जारी करता है, जाहिर करता है, तो यहाँ पर मुक़द्दस पौलुस जब दुख में है, मुसीबत में, इसकी वजह क्या है? क्योंकि खुदा ने उस पर रोया, खुदा ने उसे मकाशफा जाहिर किया। तो लिखा है, मुझे फख्र करना जरूर हुआ अगरचा मफकीर ना था, बस जो रोया और मकाशफे खुदावंद की तरफ से अनायत हुए उनका मैं जिक्र करता हूँ। मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूँ, 14 बरस हुए वो यकायक तीसरे आसमान तक उठा लिया गया। ना मुझे ये मालूम है कि बदन समेत, ना ये मालूम कि बदन के बगैर, ये खुदा को मालूम है। मैं ऐसे शख्स पर तो फख्र करूँगा लेकिन अपने आप पर सिवाय अपनी कमज़ोरियों के फख्र ना करूँगा। कि यहाँ पर खुदा का बंदा बयान करता कि मैं अपने आप पर अपनी कमज़ोरियों के सिवाय फख्र नहीं कर सकता। अगर वाजिब है तो मैं यीशु नाम पर फख्र करता हूँ जो मुझे कमज़ोरी की हालत में जोर बख्शता है, क्योंकि मेरा और आपका खुदा कादिर है। तो जब हम कलाम मुक़द्दस को देखते हैं तो इसी तरह कि जब हम कमज़ोर हो जाते हैं तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम गीत भी गा रहे थे कि खुदा शैतान को लरसा कर देता है, परेशान कर देता है, गिरा देता है, लेकिन जब हम अपने खुदा के साथ वफादार होंगे, जब हम अपने खुदा के साथ चलेंगे, जब हम अपने खुदा को वक़्त देंगे, जब हम अपने खुदा को टाइम देंगे और उसके हजूर में वक़्त गुजारते हुए दुआ करेंगे, कलाम को लेंगे, और जब जैसे जैसे कलाम हमारी ज़िंदगी में आएगा, हमारी ज़िंदगी में से बदी निकलती जाएगी, हमारी ज़िंदगी में से कमज़ोरियाँ निकलती जाएंगी। तो जब हम कलाम मुक़द्दस को देखते हैं तो लूका तबीब की मार्फत खुदा का कलाम, तो जब हम देखें तो यहाँ पर हमें मिलता है 13 बाब और 10 आयत में कि यहाँ पर हमें एक ऐसी औरत मिलती है जो बदरू लिखता है। 18 बरस से बदरू ने इसे बंधा हुआ है। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, फिर वो सब्बत के दिन किसी इबादत खाना में तालीम देता था और देखो एक औरत थी जिसको 18 बरस से किसी बदरू के बाइस कमज़ोरी थी कि अब ये बदरू दिखता है, ये औरत 18 साल हो चुके। हो सकता है इसे अब किसी तरफ से उम्मीद ना हो सकता है इसे अब किसी पर आस ना हो, लेकिन जब हम देखते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह इबादत खाना में तालीम दे रहा था, तो जब खुदा यीशु मसीह की नज़र इस औरत पर पड़ी तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि मेरे और आपके मदरची ने फरमाया, यीशु ने उससे देखकर उसे पास बुलाया और उससे कहा, ऐ औरत तू अपनी कमज़ोरी से छूट गई। हालेलुया। ये बात सीखने की है। हमारा टॉपिक है कि कमज़ोरी में खुदा की कुदरत। बीमारियां कैसी बड़ी हों, हमारी ज़िंदगी जब नाउमीदी में पड़ जाती है, जब हमारे मखालफ भर जाते हैं, जब हमारे रिश्तेदार छोड़ देते हैं, जब हम खुदा के साथ चलते हैं, तो याद रखिए, ये मत भूलिएगा। कुछ लोगों के ज़हन में ये बात होती है कि मैं खुदा के साथ चलता हूँ, मुझ पर मुसीबत नहीं आएगी। याद रखिए कि अगर हम मसीह के साथ चलते हैं तो रूहानियत तौर पर अबलीस हमें ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है। अबलीस हमारे ईमान को गुमराह करने की कोशिश करता है कि हम ईमान से कमज़ोर हो जाएं, हम ईमान से गिर जाएं।
लेकिन मेरा और आपका खुदा जो कमजोरी में हमें कुव्वत बख्शता है, जो कमजोरी में हमें तवानाई अदा करता है, जब हम उस पर आस लगा लेते हैं, जब हम अपना हाथ उससे दे देते हैं, तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है वो हमारे हाथों को लेता है और हमें ब्लेस करता है। हालेलुया। तो जरूरत है कि हालात जैसे भी हो, कंडीशन जैसी भी हो, हमें अपने खुदा से अलग होना नहीं है। याद रखिए, बहुत से ऐसी बातें हमारी ज़िंदगी में आती हैं, बहुत से ऐसे लोगों के साथ हमारा मेल मिलाप होता है जो हमें खुदा से अलग करना चाहते हैं। बहुत सी बातें हमारी ज़िंदगी में आती हैं और इब्लीस की कोशिश होती है, लिखता है कि वो शेर बब्बर की तरह धारे फिरता है कि किस वक्त फाड़ खाए, कि वो चाहता है कि कोई ऐसा वक्त मिले तो मैं खुदा के लोगों को अपनी तरफ खींच लूँ। और याद रखिए कि जब हम मुसीबत में होते हैं, जैसे कि खुदा का बंदा मुक़द्दस पौलुस मुसीबत में था, तो उसने इल्तमास की है, उसने इल्तिजा की है खुदा के हजूर। जब खुदा के हजूर इल्तिजा की है तो उसे रिस्पॉन्स क्या मिला, उसे जवाब क्या मिला है कि खुदा ने से कहा कि मेरी कुदरत तेरी कमज़ोरी में, मेरा फजल काफ़ी है। कि हमारी कमज़ोरियाँ कितनी भी ज़्यादा हों, हमारी मुसीबतें हद से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन जब खुदा का फजल, खुदा की कुदरत हमारी ज़िंदगी में काम करती है तो हर तरह के बंधन टूट जाते हैं, क्योंकि वो ना उम्मीदी में उम्मीद को पैदा करता। तो जब हम देखें तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, लेकिन हमारे पास ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है ताकि हद से ज़्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। कि यहाँ पर खुदा का बंदा भी इसी बात को फिर से बता रहा है, इस बात को फिर से बता रहा है कि हमारे बदन हैं जो मिट्टी के बर्तन हैं और हमारे बदनों में खुदा ने रूहानी खजाना रखा हुआ है। और इस बात को खुदा का बंदा मुक़द्दस पौलुस कहता कि खुदा बाप में मसीह यीशु की हमद हो जिसने आसमानी मुकामों पर हमें रूहानी खजाना बख्श दिया है। तो उसने हमें रूहानियत में भराया है, उसने हमें कुव्वत दी है। तो इसलिए जब हम कमज़ोर होते हैं तो खुदा की कुदरत तब हमें जोरावर करती है। तो इसी तरह कलाम मुक़द्दस में लिखा कि हम हर तरफ से मुसीबत उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते। इसकी वजह क्या है? क्योंकि मेरा और आपका खुदा मुसीबतों में हमारा जोर बन जाता है। हैरान तो होते हैं मगर ना उम्मीद नहीं होते, इसलिए क्योंकि वो ना उम्मीदी में हमारे लिए उम्मीद को पैदा करता है। सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। इसकी वजह यह है कि हम खुदा के साथ चलते हैं, हम खुदा की परस्तिश करते हैं, उसकी इबादत करते हैं। और हम गिराए भी जाएं तो वो हमें गिरने नहीं देता। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है झुके को उठाता और गिरों को संभालता है। जो कोई उस पर आस लगाता है, जो कि उसकी तरफ अपना आप लगा देता है, जब हम अपनी आंखें उसकी तरफ करते हैं तो उसकी कुदरत हमारी जिंदगी में काम करती है। तो बेशक मेरा और आपका खुदा हर वक्त हमारी जिंदगियों में अपनी कुदरत को जारी करता। तो जब हम देखें तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मैं ऐसे शख्स पर तो फख्र करूंगा लेकिन अपने आप पर स्वयं अपनी कमजोरियों के फख्र ना करूंगा। आज मेरे और आपके लिए हासिल कलाम यही है। हमारा मज़मून था कि कमजोरी में खुदा की कुदरत। तो यहाँ पर खुदा का बंदा मुक़द्दस पौलुस कहता कि मैं मसीह यीशु पर फख्र करता हूँ और हम मसीह में हैं तो हमें फख्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसने हमें अपने पाक लहू से खरीद लिया। क्योंकि हम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हैं ताकि हम अपने बदन से उसके जलाल को ज़ाहिर करें। तो बेशक जब हम उसमें भरते हैं, जब हम उसके कलाम की तरफ मतवज्जो हो जाते हैं तो उसका जोर, उसकी तवानाई हमारी ज़िंदगी में काम करती है। अगर आप में कोई कमज़ोर है, बीमारी की हालत में है, तो अगर आज तक हमने इस बात को नहीं जाना कि अगर हम कमज़ोरी की हालत में होते हैं तो हमारा मददगार कौन होगा। क्योंकि खुदा के बंदा मुक़द्दस पौलुस ने सीखा कि जब मैं बीमारी में, जब मैं कमज़ोरी में, जब मैं महताजी में, जब मैं भूख में होता हूँ तो तब खुदा की कुदरत मेरी ज़िंदगी में
کام کرتی ہے تو یقیناً یہ کلام آج میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ جب ہم بھی کمزور ہوتے ہیں تو میرا اور آپ کا خدا اپنی قدرت کو اپنی حکمت کو ہماری کمزوریوں میں پورا کرتا ہے. خدا آج کے کلام کے سلسلے سے مجھے اور آپ کو برکت دے. آمین. زوردار کلیپنگ ایک بار پھر. آئے اس کلام کے لیے میں چاہتا ہوں بھائیوں میں اس کو دعا کرنا ہے. آمین. اشتہارات میں سب سے پہلے بات ہیں سنڈے کی عبادت صبح 9:30 سے لے کے 11:30 بجے تک ہوتی ہے. پہلا اور تیسرا اتوار پاکشاہ کی عبادت ہوتی ہے. یہ سنڈے جو آئے گا پاکشاہ کی عبادت ہوگی. جو لوگ خدا ان کے بدن و خون کو حاصل کرتے ہیں وہ ضرور تیاری کے ساتھ آئیں تاکہ خدا ان کے بدن و خون کو حاصل کر سکیں. اس طرح بدھ کی عبادت شام 7:30 سے 9:30 ہوتی تھی، لیکن اگلے بدھ سے اس کا ٹائم جو ہے وہ مکمل طور پہ چینج کر دیا جائے گا. اس کا ٹائم جو ہے وہ 7 بجے کر دیا گیا ہے. اگلے بدھ کی عبادت جو ہے وہ ٹھیک 7 بجے سے لے کے 9 بجے تک ہوگی. سنڈے کو بھی اس کا اعلان کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ بدھ کی عبادت جو ہے اس کا ٹائم جو ہے وہ چینج کر دیا گیا ہے. اور اسی کے ساتھ جو مہانہ باتیں گھروں کی ان کا ٹائم جو ہے وہ بھی چینج کر دیا جائے گا. جو گھروں کی باتیں ہیں ان کا ٹائم بھی 7 بجے کر دیا جائے گا کیونکہ اب 7 بجے موسم چینج ہو گیا ہے. 7 بجے کافی اندھیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس لیے تمام عبادتوں کے ٹائم جو ہے وہ چینج کر دیے گئے. کل کا دن جو ہے وہ ہمارے پاس خالی ہے ابھی، جمعرات کا دن، لیکن جمعے سے ماہانہ باتیں جو ہے ان کا باقاعدہ آغاز دوبارہ سے ہو جائے گا. جمعے کی عبادت بھائی انور گل کے گھر میں چونگی بگائی میں ہوگی، اور ہفتے کی عبادت تلسپورہ میں بیٹے جوید کے گھر میں ہوگی. سنڈے کو پاکشاہ کی عبادت ہوگی. اور اس بار سنڈے کو ہم یہ بھی فیصلہ کریں گے کہ ہم نے 14 اگست کا پروگرام کرنا ہے یا منوٹی نے 11 اگست کو منانا ہے. دونوں میں سے ایک دن جو ہے وہ ہم عبادت کریں گے. سو برائے مہربانی سوچ کر جواب دینا ہے، کیونکہ جب سے ثانیہ جڑا والا ہوا یہ اس کا ثبوت ہم نے رکھا ہوا ہے. یہ بائبل مقدس وہاں سے ہم لے کے آئے تھے اور یہاں پہ ہم نے لا کے اس کو اس لیے رکھا تھا کہ ہمیں یاد رہے کہ 16 اگست کو ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا. 14 اگست اس کے بعد ابھی تک ہم نے چرچ میں اس کا پروگرام نہیں کیا، لیکن اگر ٹیم فیصلہ کرے گی تو اس بار 14 اگست کا پروگرام ہوگا. نہیں تو منوٹی ڈے والے دن جو ہے وہ پروگرام کر دیا جائے گا. جو اقلیتوں کا دن ہوگا اس کا پروگرام ہم ضرور چرچ میں کریں گے. اگلے ویک کی جو باتیں ہیں وہ باقاعدہ طور پر سنڈے کو اناؤنس کی جائیں گی. آئیں ہلے کے لیے گیت گاتے ہیں. میں بڑی بڑی چک ہو گیا، میں نے یسو جی لگیا. میں بڑی بڑی چک ہو گیا، میں نے یسو جی لگیا کوئی، یسو جی لگیا کوئی. میں بڑی بڑی
लबे आने कोई यीशु जया लबे आने कोई मेरी जिंदगी के गम बिना कोई जिंदगी के गम बिना कोई मेरी जिंदगी के गम बिना कोई जिंदगी के गम बिना कोई ओदे वांगू मैनू कोई प्यार कीते करेगा ओदे वांगू मेरे नैना कदी कोई मरेगा ओदे वांगू मैनू कोई प्यार कीते करेगा ओदे वांगू मेरे नैना कदी कोई मरेगा पैसा मेरे बहुत डोलेगा मैनू ये तुझे लबे आने कोई ये तुझे लबे आने कोई पैसा मेरे बहुत डोलेगा मैनू ये तुझे लबे आने कोई मैं बिकिया न कोई मसीहा बनेगा मैं बिकिया न कोई मसीहा बनेगा किसी ने न कोई भेंट मारेगा मैं बिकिया न कोई मसीहा बनेगा मैं बिकिया न कोई मसीहा बनेगा मैं बिकिया न कोई मसीहा बनेगा किसी ने न कोई भेंट मारेगा मैं बिकिया न कोई मसीहा बनेगा लबे आने लबे दाने ऐसा हो चुका है अपनी आपे दाने नहीं होया कुर्बाने लबे आने लबे दाने ऐसा हो चुका है अपनी आपे दाने नहीं होया कुर्बाने ते सबने भी है वो बोलिया मैनू ये तुझे लबे आने कोई ये तुझे लबे आने कोई ते सबने भी है वो बोलिया मैनू ये तुझे लबे आने कोई ये तुझे लबे आने कोई मैं बड़ी बड़ी गल बोलिया मैनू ये तुझे लबे आने कोई ये तुझे लबे आने कोई जदों दाद देने लगिया मेरी जिंदगी ते गम बिना कोई जिंदगी ते गम बिना कोई तमाम अहतियात को खुदा के ज़ुम्मे रखेंगे और बहन परवीन के साथ बच्चे हम दुआ करेंगे और तमाम अहतियात को खुदा के ज़ुम्मे रखेंगे कभी किसी मुश्किल मुसीबत या परेशानी से ना घबराए बल्कि खुदा हमेशा तेरे साथ जुड़े रहे और खुदा जिस तरह तेरा बंदा महसूस नहीं करता है कि मैं कमजोरी में जब होता हूँ तो खुदा मैं तुझमें जोर पाता हूँ तो खुदा टूटता है मुझे जोर देता है अपनी हिम्मत और कुव्वत से नवाजता है खुदा तेरा जोर हमारा तेरा कलाम खुदा हमारा जोर बनता है खुदा हमारी रूह हमेशा तेरे कलाम से भरी रहे और खुदा हम तेरे नाम में वो इज्जत और खुदा तमाम बड़े नजराने तेरी हजूरी में लाते हैं जिन हाथों ने खुदा तेरा दिन नजराने गुजराने हैं
हमें मैं चाहता हूँ पास्टर अवैस थोड़ी देर के लिए खड़े हो गए, अगर इनकी फैमिली के मेंबर भी हैं तो भी खड़े हो। आया अच्छा कौन पास्टर अवैस ये बाकायदा तौर पे हमारे चर्च को ज्वाइन करेंगे और आज इन्होंने सरमन भी दिया। संडे को ये हमारे साथ आए, इन्होंने इबादत की। आज से हम अपनी कलीसिया में पास्टर अवैस को, इनकी फैमिली को वेलकम करते, भरपूर करते हैं। शुक्रिया, खुदावन इनको और अपने फिलहाल के कसरत से इस्तेमाल करें। मैं चाहता हूँ अगर पास्टर अवैस कुछ बताना चाहें कि क्यों यहाँ पे आए हैं तो इनके लिए मौका हो। इसमें आपकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम जनाब पास्टर अवैस, तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने अपनी कुदरत के लिए, खुदा ने अपने कलाम की मुनादी के लिए छोटी सी उम्र में चुना है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। जैसा कि आज हमने सीखा भी है कि खुदा हमारी कमज़ोरियों में अपनी कुदरत को जारी करता है। तो मैं खुदा के खादम जनाब पास्टर आसिफ खोखर की चर्च में खुदा के खादम के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ और मुझे बहुत बरकत मिली है, ब्लेसिंग मिली है। और मैं चाहता हूँ कि खुदा इसी तरह मुझे भी और खुदा के बंदा को, आप सबको, हमें अपने जलाल के लिए, अपने काम के लिए इस तरह कसरत से इस्तेमाल करें ताकि जो कुछ भी हो उसकी मर्जी और उसके कलाम की कुदरत के सबब से हो। खुदा का शुक्र। शुक्रिया, आप क्लैपिंग कर सकते हैं। आज के बाद पास्टर अवैस जो है ये हमारे कलीसिया का एक हिस्सा है। जिस तरह हम बच्चे को मखसूस करते तो उसको हम ऐलान करते कि आज के बाद ये हमारी कलीसिया का एक रुकन बन चुका। तो पास्टर अवैस जो है आज के बाद बाकायदा तौर पे हमारे चर्च का रुकन है, हिस्सा है हमारे। और खुदा के कलाम की मुनादी भी ये गाहे गाहे मेरे साथ करते रहेंगे, क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा मैं बिजी रहता हूँ। और ये भी खुदा की मर्जी होती है कि खुदा अपने लोगों को खड़ा करता है ताकि लोग मिलते जाएं। अच्छा, कुछ रात को मैं किसी जगह पे बैठा था, परसों रात की बात है, कुछ लोगों ने एक बात कही कि जो लोग नए आते हैं पास्टर साहब उसको ज़्यादा प्यार करते, पुरानों को भूल जाते हैं। ऐसा हुआ है कभी? जो लोग पहले से मेरे साथ चल रहे हैं अपनी गलतियों से पीछे हटे तो वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं कभी भी किसी को तनहा नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। मैं तो उन लोगों में जाके खड़ा होता हूँ जो लोग मेरे जानने वाले नहीं होते, जो मुझे नहीं जानते, जो मेरी कलीसिया के नहीं हैं। 2 दिन से हम वो FIR जमा कर रहे हैं जिन पर हमने काम किया, जो बड़े केस हुए। आप जानते हैं, सारे जानते हैं, यहाँ बताना मैं मुनासिब नहीं समझता। लेकिन आज जब हमने उनको जमा किया तो जो बड़े केस हैं वो 6 हो गए, 6 से 7 है, और जो छोटे छोटे केस हैं उनका शुमार को नहीं है। हालांकि अमन कमेटी जो है वो मुझे इजाज़त नहीं देती कि मैं छोटे केसों को लूँ, लेकिन ये मेरा प्यार है या मेरा बोझ है कि खुदा ने मुझे ये बोझ दे रखा है कि मैं अपनी कौम के लिए जब भी कोई मुश्किल परेशानी आती है सिर्फ आप पास्टर आसिफ को सामने देखेंगे। कल भाई अमन को, जिनका पिछले दिनों केस हुआ है निशाद कॉलोनी में, कल मैं बाकायदा तौर पे उनको जेल में मिलेगा। मेरी कोशिश होती है कि जो लोग इन केस में जेल चले जाते मैं जाकर उनको भी विजिट करूँ, मिलूँ, क्योंकि उससे पहले मैं इनको मिला था। तो कल मैं उनको मिल के आया हूँ, दुख हुआ मुझे। एक पढ़ा लिखा बंदा, वो प्रोफेसर था, बच्चों को पढ़ाता था, और वो इतने बड़े केस में एकदम से फंस गया। कल परेशान था, आपने हौसला दिया कि आप परेशान ना हो, आप अंदर हैं लेकिन हम बाहर हैं। खुदा ने चाहा तो बहुत जल्द खुदा इंसाफ करेगा, क्योंकि खुदा इंसाफ का खुदा है। खुदा कभी भी हमें तनहा नहीं छोड़ता। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि जब कोई मुश्किल परेशानी आती है तो अपने जो है वो भी छोड़ के चले जाते हैं, वो भी पीछे हट जाते हैं। लेकिन खुदा का शुक्र है कि अमन कमेटी उस वक्त भी उन लोगों के साथ खड़ी होती है
जब लोग डर रहे होते हैं, अपने घरों को छोड़ कर चले जाते हैं, लेकिन अमन कमेटी उस वक्त भी उन लोगों के साथ खड़ी होती है कि हम आपके साथ हैं, आप परेशान ना हो। और आप लोग की दुआओं से ये सारा कुछ होता है, क्योंकि आप लोग दुआएं करते हैं तो हम इतनी देरी से ये सारे काम करते हैं। सो बराए मेहरबानी आप दुआ किया करें ताकि खुदा इसी तरह अपने लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। आए बीमारों के लिए दुआ करेंगे, तमाम वो बीमार जिनकी ब्रेन पेस्टें खुदा के घर में आती हैं, खासकर जो लोग इस वक्त हमारे साथ यूट्यूब पर, फेसबुक पर ऑनलाइन इबादत कर रहे हैं, सबके लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद उनके दिल की जो जायज़ नाते हैं उनको भी पूरा करें। प्यारे भाई आफर के लिए खास दुआ करेंगे, उनकी बीवी के लिए, उनके बच्चों के लिए जो एक बड़ी मुश्किल में आए हैं कि खुदावंद जल्द अज जल्द उस मुश्किल से उनको निकाले। कल उनकी मिसेस बहुत ज़्यादा रो रही थी, मेरे साथ वो गाड़ी में जब वापस भी आई, बड़ी रास्ते में मैं उनके साथ बातें कर रहा, आपने उनके लिए खास दुआ करनी है कि खुदावंद उनको तसल्ली दे और जल्द अज जल्द उनका हस्बैंड जो है उनके साथ वापस अपने घर में वापस आए। इस तरह और भी बाजी सलमा के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद जो उनकी मादा चोट है, खुदावंद जल्द अज जल्द उसको हील करे और वो अपने कदमों में खड़ी होके जो उसकी खिदमत है वो दोबारा से अपनी खिदमत को कर सके। दुआ करो ज़्यादा से ज़्यादा है, बूढ़ा रख लेती तो जगह बाबर हो गई है, ठीक है ना। इसके लिए खास दुआ करें ताकि ये बूढ़े को छोड़ दे और अपनी खिदमत दोबारा शुरू करें, क्योंकि आपको पता है बाजी प्रवीण, बाजी सलमा और रुमेला, बाजी खालदा, ये हमारी टीम का वो हिस्सा है कि जब अच्छा मानना बंदा बोलिए ना, मुझे ये नहीं समझ आती, मैं बार बार ऐलान करता हूँ कि ये मुकर्रर किए गए हैं आपको बैठाने के लिए, आप इनकी बात को सुना करें। अगर ये आपको आगे कहते हैं आगे हो जाए, पंखे इतने ज़्यादा इसलिए लगाए थे, अब गर्मी इतनी ज़्यादा, इसमें इनका कसूर तो नहीं है, गर्मी ज़्यादा है लेकिन पंखे फिर भी ज़्यादा आपने लगा दिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ये ना हो कि आप पंखे के नीचे बैठ, पहले होता था तो उस पंखे के नीचे जो बैठता वो कहता है मैं आगे नहीं होना क्योंकि हवा नहीं आगे होगी। अब तो ये पंखे भी ज़्यादा होते हैं। अब मेरा ख्याल है कि कोई जगह ऐसी नहीं चर्च की जहाँ पे हवा ना आए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें हो रही होती तो हम तो बैठे हैं, हम तो खिदमत कर रहे हैं। सो जब चर्च में होते हैं तो बराए मेहरबानी टीम के लोगों की बात ज़रूर सुना करें। जब टीम आपको कहती है कि आगे हो जाए, बच्चों को सीढ़ियों में भेज दें, तो बराए मेहरबानी उनकी बात को ज़रूर सुना करें। आए अपने सब कुछ कहेंगे और दुआ करेंगे। भाई तारक के लिए दुआ करेंगे, हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल में हैं, ICU में हैं, उनके फेफड़ों में पानी है। डॉक्टरों ने कहा है जब तक ये अपनी सांस पर नहीं आएंगे उतनी देर तक इनके फेफड़ों का पानी नहीं निकाला जाएगा। सो दुआ करें कि खुदावंद जल्द अज जल्द उनको बहाल करें, वो भी अपने बच्चों में सलामती से वापस आएँ। आए अपने सरों की कायम पर दुआ करें। हालेलुया। कदूस जगत बाप पैरवर के हाल कमाले की हवा पाफ्ता शुक्रगुजार खुदा इस वक्त के लिए जो तेरे बारिश ने कई दिन बख्शा कि एक बार फिर मैं तेरे कदमों में आ सका। खुदा तू नहायत प्यार करने वाला खुदा है और हम तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं कि खुदा तो हम निकम्मों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और खुदा को अपने मौज़ात हमसे करवाता है। इन सारी बातों के लिए बता शुक्रगुजार खुदा शुक्रगुजार इस प्यार मोहब्बत के लिए, इस मेल मिलाप के लिए जो तो हमसे रखता है। जब तेरे बेटे और बेटियां तेरे कदमों में आते हैं तो अपना आसमान खोल देता है और उनको बरकतों से माला माल करता है, उनकी दुआओं का जवाब देता है। तो खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार इस बात को। खुदा प्यार भाई आमर को तेरे हाथ में होता हूँ। खुदा जब वो बहुत बड़ी एक मुश्किल में आ चुका तो खुदा हम चाहते हैं कि तू उसको उस मुश्किल से निकाल और तेरा बेटा जल्द अज जल्द बहाल होकर अपने घर में आकर तेरा शुक्रिया अदा करने वाला बने। प्यार भाई तारक को तेरे हाथ में होता हूँ। फेफड़ों का सारा पानी यीशु मसीह के नाम से अफदा वो अपनी सांसों पे बहाल हो, क्योंकि सांसें तेरे ही हुक्म से आती है। खुदा सांसें तू ही अनायत करता है। खुदा तो अपने बेटे पर अपने खास करम की नजर कर, उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, जल्द अज जल्द वो अपने कदमों पर खड़ा होकर तेरे नाम की गवाही दे। खुदा उसको जिंदगी देना, वो अपने घराने के लिए एक गवाही का सबब बन जाए। इस तरफ का प्यार बहन सलमा को तेरे हाथ देता हूँ। खुदा तो अपनी बेटी पर अपने करम की नजर कर, उसकी सारी चोट यीशु मसीह के नाम से ही रखो और तेरी बेटी शिफा पाए ताकि तेरे नाम की गवाही हो। खुदा जो लोग इस वक्त ऑनलाइन हमारे साथ इबादत कर रहे हैं, खुदा सबको बरकत देना और जो जायज़ मुरादें को भी पूरा करना।
इस तरह खुदा मैं तेरा हालत खुदा तेरे आगे इल्तिजा करता हूँ कलीसिया में जो लोग बीमार हैं खुदा बाप खुदा बेटा रूहुल कुदस के नाम से शिफा पाए हर तरह का बुखार हर तरह का फ्लू हर तरह की गले की खराबी हर तरह की मैदे की खराबी यीशु के नाम से जाती है और तेरे लोग बहार हर तरह का भाईपन यीशु के नाम से जाता है खुदा जिनके पास आदमी को लाद जैसी की नसीबात जिनके पास घर नहीं है खुदा को घर जैसी की नसीबात जिनके पास नौकरियां नहीं खुदा को नौकरी का हर तरह की गिल्टियां हर तरह की सौलियां हर तरह की पथरियां खुदा बाप खुदा बेटा रूहुल कुदस के नाम से खुदा बेटे नसूल को तेरे हाथ में होता है उसके दिल की तमाम दर्द को यीशु के नाम से झड़कते हैं कि तेरा बेटा शिफा पाए हर तरह की बीमारी मुकम्मल तौर पर स्थिर हो गए और तेरा बेटा बहाल हो ताकि तेरे नाम की गवाही हो हर तरह की शुगर हर तरह का बीपी यीशु के नाम से कंट्रोल हो खुदा बच्चों के जो बच्चे स्टडी करते उसको स्टडी में कामयाब करना बच्चों में से नाफरमानी की रूह यीशु के नाम से जाती है खुदा जिन बच्चों के रिजल्ट आने वाले हैं खुदा उनको रिजल्ट में कामयाब करना अच्छे नंबरों से पास हो ताकि तेरे नाम की गवाही दे इस तरह खुदा मैं तेरा हाथ में खुदा तेरे आगे इल्तिजा करता हूँ कि पाकिस्तान को तेरे हाथ में देता हूँ खुदा इसके हालात को तो दुरुस्त कर खुदा दुनिया में जहाँ जहाँ जंगें हो रही हैं खुदा बाप खुदा बेटा रूहुल कुदस के नाम से सारी जंगें बंद हो क्योंकि खुदा अमन का शहजादा है तो अमन का बानी है खुदा इसीलिए जमीन पे आया था कि लोग अमन और सुकून से रहे सुलह और सलामती से रहे तो खुदा मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया में सलामती आए अमन आए ताकि तेरे नाम की गवाही हो मेरा ईमान मेरा भरोसा है कि जो कुछ हमने तुझसे मांगा है वो हमने पा लिया है ये सब कुछ मांगते हैं खुदा यीशु मसीह का नाम लेकर आमीन जिसने भी सिखाया आज हमारे बाप जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए तेरी बादशाहत आए तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे जिस तरह हम अपने कदर को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है आमीन अब तब यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत पाक की रफ़ा का इशराकत अब से लेकर तमाम तकसीम के साथ तमाम मसीही ईमानदारों के साथ मुल्क पाकिस्तान के साथ अब से लेकर हमेशा तक होता रहे आमीन जलाल बाप और बेटा रूह कुदस के नाम से आमीन इबादत के बाद क्वैट एक्सेप्ट होगी क्वैट के लिए ऐलान है आए इबादत हो चुकी है जो लोग दुआ करते हैं उनसे मौका होगा कोई पत्थरा जो लपदा लपनो कोई लपदा इंसान विच कोई पत्थरा जो लपदा लपनो कोई लपदा इंसान विच रब दे कोई पत्थरा जो लपदा लपनो कोई लपदा इंसान विच नेता ते बदल काया होते अपना भी बदलावे हो नेता ते
कोई पत्थरा जो लपटा रबरो कोई लपटा इंसाना कोई पत्थरा जो लपटा रबरो कोई लपटा इंसाना सारी दुनिया रब दी रब नो रब साडा साडो लभदा सारी दुनिया रब दी रब नो रब साडा साडो लभदा ओ भाई पावन आया साडा नादिया सब गाए ओ भाई पावन आया साडा नादिया सब गाए रब सच्चे दे नादा तेरा रब सच्चे दे नादा तेरा होवे कोई ज़बाना विच कोई पत्थरा जो लभदा रब नो कोई लभदा इंसाना विच कोई लभदा इंसाना विच कोई लभदा इंसाना छोटी छोटी गलियों में गूंजता है तेरा वरना अच्छी गलियों में तेरी सितारे बड़े बड़े हाथ रे थाम के रखा तेरा संगिया रे मेरे हाथ देने में तो हाथ लो मेरे नाम सीधा की सजो संगिया रे मेरे हाथ देने में तो हाथ लो मेरे नाम सीधा की सजो मैं तो हर जगह अपने खुदा की राहें संवारे का चलूं मैं तो हर जगह अपने खुदा की राहें संवारे का चलूं तेरे लीड़े रस्तों पर तेरी ओर चलते हैं तमाम कितने भी कितने छोटी छोटी गलियों में गूंजता है तेरा लड़ना अच्छे तेरी सितारे तेरे
दिलाया सिखलाया जो दिया सारे छोटी छोटी गलियों में गुजरता है तेरा बरना कच्चे घरों बड़े बड़े हाथों ने थाम के रखा तेरा कलाम तेरे छोटे करती हूँ मैं तेरे प्रार्थना वो तेरे छोटे आराधना करती हूँ मैं तेरे प्रार्थना महिमा से जब तू चाहे वो यहाँ पे मुझे बचाता है जब मैं पुकारूं कोई दौड़ आता है जब मैं गिरूं मुझे उठाता है हालेलुया हालेलुया हालेलुया
चलो क्वायर क्वायर की नीयत है कि आ जाओ काफी देर से मैं नशे में प्रैक्टिस नहीं करवा तो अब मैंने कहा चलो आज कैंप चलो क्वायर अच्छा क्वायर जो है अपनी डायरीज पकड़ ले, अगर नहीं डायरी तो यहाँ से लेके तो उसमें गीत लिखने हैं। चलो चाहिए